Welcome for our present discussion for class 12 accountancy. Today I will discuss before you the partnership chapter fundamental and the past adjustment topic will be discussed today. Past adjustment, that is whatever profit and loss appropriation account is prepared, any accountant of an organization has made any mistake. Suppose interest on capital या salary या interest on drawings या profit sharing ratio, whatever as per partnership deed is mentioned, sorry, the accountant has not considered in the partnership firm's accounts in PL appropriation account. So whatever mistake the accountant has done in the preparation of PL appropriation account, but that very accountant has completed the accounts, balance sheet also prepared, after that it is found that any mistake was made in the PL appropriation account, any mistake was made in the accounting procedure. So now the balance sheet will not be altered, PL appropriation account will not be altered, partner's capital account will not be altered. Rather than there will be a single journal entry through which the past happening wrong effect in the accounts, that will be rectified, that will be adjusted. That is called the past adjustment. Past any wrong is adjusted right now by a journal entry. But before that journal entry, we have to do the workings for calculation of that. Take an example for this topic. Here I have taken an example that A and B are partners. A and B are the partners. Their capitals were rupees 1 lakh and 1,20,000 respectively. Profit sharing ratio is 3:2. Interest on capital was to be provided at the rate of 10% PA, which were omitted before distribution of profit. This is the vital topic. This is the vital point, vital sentence for this topic. कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 10% रेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, which were omitted before distribution of profit. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. लेकिन ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो चुका है, मतलब ये भूल गया, भूल से नहीं हो पाया. तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. यहाँ पर बहुत सारे के टॉपिक फैक्टर काम करेगा. हो सकता है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, भूल गया. कभी हो सकता है बोलेगा कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो भूल से 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. हो सकता है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है लेकिन सैलरी देना भूल गया. हो सकता है 5,000 रुपीज़ एनुअल सैलरी था लेकिन वो 5,000 रुपीज़ पर क्वार्टर दे दिया या सैलरी दिया ही नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था 12% रेट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गया. तो वेरियस मिस्टेक मे बी मेड बाय द अकाउंटेंट. He is a person, he is a human being, so mistake must be made. That's why the errors are there. And in 11 chapter was there also rectification of errors. So accountancy is such a subject where we accept that we are the human being. We may have some mistake, we may have some error, but we have the capacity, we have the intellectuality to face ourselves, to confess ourselves that yes, mistake is made by me, so I have the capacity to rectify also this. So the rectification of errors topic we have read in 11th class, and now same type but in different attitude in the partnership fundamental topic it is coming.
you are asked here show the adjusting entry, एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, ये पूछा गया। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री तो एक जर्नल होता है, उसके पहले आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एक फॉर्मेट बना के करना है। लेकिन ये कैसे करेंगे, इसके लिए एक बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। कैसे वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भूल गया था, उसको जानने के लिए एक बैकग्राउंड नॉलेज का जरूरत है। उसके लिए थोड़ा सा यहां पर आइएगा। जो अकाउंटेंट था जिन्होंने ये भूल किया है, सपोज अगर वो ठीक पीएल एप्रोप्रिएशन, करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो इस तरह ही पीएल एप्रोप्रिएशन उन्होंने बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, आई हैव एज्यूम्ड दैट नेट प्रॉफिट सपोज 50,000 हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते उन्होंने तो 10% बोला गया क्वेश्चन में। मिस्टर ए का कैपिटल था 1 लाख और मिस्टर वाई का कैपिटल था, मिस्टर बी का कैपिटल था 1,20,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑन 1,10,000 and 10% on 1,20,000 is the 12,000. So total interest on capital is 22,000. अकाउंटेंट को ये करना चाहिए था 50,000 टोटल, ये 50,000 से 20,000 माइनस होके 20,000 रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये 28,000 3:2 रेशियो में डिवाइड होना चाहिए था, ये एक्चुअली होना चाहिए था, बिकॉज 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन सवाल यहां पे है कि ये तो होना चाहिए था, इट इज द करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन अकाउंटेंट ने ओमिट कर गया। क्या ओमिट कर गया? ये वाला पार्ट ओमिट कर गया। अगर ये 22,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता है, तब फिर ये 50,000 प्रॉफिट, यहाँ पे बैलेंस कितना आता है? 28,000 के जगह पे 50,000 आ गया होगा भूल से, तो 50,000 रुपीज ही ना 3:2 रेशियो में भाग हो गया होगा। लेकिन 50,000 में से 28,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही था। भूल से क्या हो गया? भूल से ये 22,000 रुपीज 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज द रॉन्ग पार्ट। जो ए को 10,000 मिलना चाहिए था, बी को 12,000 मिलना चाहिए था, इसी तरह 22,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हैसियत से। वो नहीं होके भूल से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो नहीं हुआ, इसलिए 22,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर से भाग हो गया है 3:2 रेशियो में। इसी चीज को ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करना है। किस तरह लिखेंगे हम लोग? पहले लिखना है क्या होना चाहिए था। ये आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नॉट बुकिश लैंग्वेज, यू हैव टू फॉलो ऑलवेज। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be allowed at the rate of 10% PA। तो A को कितना मिलना चाहिए था? 10,000, B को 12,000। टोटल कितना मिलना चाहिए था? टोटल 22,000। लेकिन ये 22,000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किस तरह? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशियो। तो जब 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? 3:2 रेशियो में ए को मिला 16,800 और बी को कितना मिला? 11,200। सो 11,200। राइट डाउन हियर, ड्रॉ द लाइन। ए को कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हैसियत से? 10,000। मिल गया कितना? ओके, आई थिंक something calculation mistake is here. Yes,
22,000, यस 22,000 अगर 3:2 रेशियो में भाग हो गया है भूल से, तो 5 4 5 4 तो 3 4 12 करीब 1 3 4 12 13, ए को मिल गया 3:2 रेशियो में 13,200 और बी को मिल गया 2/5 दैट इज 4,400 इंटू 2 सो 8,800 बी को मिला। यस सो हाउ मच 13,200 and 8,800. These two addition must be equal to the 22,000. 8 to 10 carry 1, 8 1 9 9 3 12 2 carry 1 1 1 2. So ये ए को मिलना चाहिए था 10,000, भूल से मिल गया 13,200, मतलब ए ज़्यादा मिल गया तो ए लाएगा 3,200। इसको इस तरह समझने से ये इजी होता है। ए को 10,000 मिलना चाहिए था, मिल गया 13,200, दैट इज ए विल ब्रिंग 3,200। जब पार्टनर को मिलता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब पार्टनर लाता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ए को लाना पड़ेगा तो ए विल बी डेबिट, और बी को मिलना चाहिए था 12,000, मिला है 8,200, दैट इज बी विल गेट more 3,200, so B will get, so B will be credited. Here it is nil, क्योंकि 22,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन 22,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लेकिन रॉन्ग तरीके से, तो यहाँ पे नील। सो A is debit and B is credit. Now in this way you have to put the journal entry. What will be the journal? A is debit, so A's capital account debit by 3,200 to B's capital account 3,200। आपको लिखना पड़ेगा नरेशन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted, now adjusted. Whatever you are doing, just you write in your own language. ये जो जर्नल कर रहे हैं, ये जर्नल के लिए जर्नल का फॉर्मेट खींचना मस्ट नहीं है। अगर आप खींच देंगे तो दैट इज बेटर, लेकिन इसके लिए मस्ट नहीं है। और एक चीज बोलना यहाँ पे जरूरी है, अगर क्वेश्चन में ये बोला रहता कि ए और बी का कैपिटल है फिक्स्ड, that is 1 lakh rupees, 1,20,000 rupees, whatever capital is given in the question for A and B, a sentence is given like that, their fixed capital is 1 lakh and 1,20,000 respectively. तो fixed capital वर्ड से हमको पता चल जाएगा कि ये fixed capital मेथड फॉलो अप हो रहा है। fixed capital मेथड फॉलो अप होने से सारा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेकर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, सब एडजस्टमेंट कहाँ होता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होता है। तब जाके आपका जर्नल एंट्री में जस्ट बाकी सब ठीक रहता, जर्नल में चेंज होता, एज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट, इतना सा खाली चेंज होता और बाकी सब ठीक है। जस्ट अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला रहता कि सैलरी देना था बी को 2,000 पर मंथ, वो भूल गया है देना, तो 12 महीने में कितना होता है? 2,000 पर मंथ होने से 24,000, तो वो भी अगर भूल गया तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हम लोग दिखाए उसके नीचे फिर सैलरी का बात भी लिखते हैं हम लोग, सैलरी टू बी अलाउड बोल के। अगर बी को सैलरी मिल रहा है तो ए का घर में गैप जाएगा, बी का घर में 24,000 आ जाएगा, और वो 24,000 टोटल का घर में भी लिखना है। उसके बाद फिर एक टोटल कर लेना है, वो अमाउंट अल्टीमेटली रॉन्गली प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस हिसाब से ए और डेबिट बी के बीच में डेबिट क्रेडिट होगा, उस हिसाब से जर्नल आएगा। यहाँ पे 2 पार्टनर्स की जगह पे 3 पार्टनर्स भी हो सकता है, 4 पार्टनर भी हो सकता है, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक,
and there are 7-8 psalms in the books. So you follow up that, and if any problem, then you can contact with my contact number, so I can overcome your problem. Okay, thank you very much.